NCERT Class 8 Chapter 3. Why do we need a parliament? We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have consent of their citizens. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन में और उनके रूल्स रेगुलेशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं. It, it is these elements that together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of parliament. और हमारा सिटीजन गवर्नमेंट के पॉलिसी में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो किस इंस्टीट्यूशन यानी किस संस्था के द्वारा पार्टिसिपेट करते हैं, वो संस्था ही पार्लियामेंट है जिसको हम संसद बोलते हैं. वाई शुड पीपल डिसाइड? अभी अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना, चाहे कोई भी पॉलिसी बनाना, उसमें पीपल क्यों डिसाइड करना? पीपल का निर्णय, पीपल के कंसेंट यानी पीपल के सहमत, पीपल का डिसीजन क्यों आवश्यक है? क्यों ऐसे पीपल के कंसेंट जरूरी होना चाहिए? इंडिया एज वी नो became independent on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation. In decision making अंडर colonial rule क्या होता है? ब्रिटिश के समय जो रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो इंडिया के अंदर रूल रेगुलेशन था, उसी को ही हम colonial रूल्स बोलते हैं. The people had lived in fear of British government and did not agree with many of decisions that they took, but they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. The freedom movement changed this situation. उस समय जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका कोई अपोज नहीं कर सकता था. अगर अपोज कोई करता था उसके लिए बहुत बड़ा उसका रिजल्ट यानी बहुत बड़ा परिणाम होता था. बट जो फ्रीडम मोमेंट था, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया. और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी 1909 में कुछ लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट हुए थे, यानी गवर्नमेंट के डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते थे. गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक. इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी sensitive to people's needs and demands. Principle of universal adult franchise, that all adult citizens of country have the right to it. अब एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इट मीन्स all adult citizens of the country have the right to vote. Means 18 years and above the age of 18 years, all person is called adult and all adult citizens of country have the right to vote. Means all adult can participate decision making of the government. What is EVM? Electronic. EVM means electronic voting machine. Electronic voting machine were used throughout the country for the first time in 2004 general elections. The use of EVM in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the बैलेट पेपर. यानी बैलेट पेपर के हटाने के बाद जो ईवीएम आया उससे हमारे इकोसिस्टम को बहुत फ़ायदा हुआ और 8,000 टन्स ऑफ पेपर जो प्रिंटिंग होता था हर साल और 1,50,000 ट्री कट होते थे, उससे हम बच गए. और ईवीएम का सबसे पहले जो यूज हुआ था वो 2004 जनरल इलेक्शन में हुआ था. इसको याद रखना, ईवीएम का फुल फॉर्म और एक कब हुआ था और इससे क्या क्या बेनिफिट हुए थे. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. अब पीपल कौन है? पीपल था हम लोग हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो पीपल है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे.
The take off point for democracy idea of consent, example the desire, approval and participation of the people. It is the decision of people that creates democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that individual or citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of their citizen. How does the individual give approval to the government? One way of doing so, as you read, is through elections. अभी हमको ये देखना है कि इंडिविजुअल गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल या अपना कंसेप्ट, अपना कंसेंट यानी अपनी सहमति कैसे देता है? वन वे ऑफ डूइंग, इलेक्शन के थ्रू देता है। पीपल वुड इलेक्ट, और इलेक्शन के थ्रू कैसे देता है? क्योंकि पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। जो भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। देन वन ग्रुप फॉर्म अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। उसी में से एक ग्रुप जिसके पास मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स गाइड द गवर्नमेंट। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं वही लोग गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। Use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how the person gets elected. अभी एमएलए क्या होता है? एमएलए के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि एमएलए कौन होता है और वो किसको रिप्रेजेंट करता है और वो कौन कहाँ पे जाके रूल रेगुलेशन बनाते हैं। डिस्कस विद योर टीचर डिफरेंट बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड पार्लियामेंट, लोकसभा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में होता है, और जो पार्लियामेंट लोकसभा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द सेंट्रल। ये जो बहुत सारे वर्क दिया है इसको आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि कौन सा वर्क स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और कौन सा वर्क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग्स। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एमएलए, रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्टली, ये इस वर्ड्स के थ्रू आपको इसमें दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स करने, ये आपके लिए असाइनमेंट है। अगर समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क टू माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट इज द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम संसद भी बोलते हैं, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ टू हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो संसद होता है जिसको हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसके टू हाउसेज हैं। एक हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और एक हाउस को बोलते हैं लोकसभा। राज्यसभा is also called upper house and Lok Sabha is called lower house. राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट विद द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245, जो राज्यसभा है जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, विद द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स, इज द चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो इसका चेयर पर्सन होता है राज्यसभा का वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हमको पूछा जाए कि हु इज द प्रेजेंट चेयर पर्सन ऑफ द राज्यसभा, इट मीन्स Sri Venkaiah Naidu, because Venkaiah Naidu is Vice President of India. Now this is Lok Sabha. Lok Sabha, House of the People. Lok Sabha also called House of People, Lower House, House of Representative, with a total membership of 545, is the presided over by the Speaker. इसका स्पीकर होते हैं, जो स्पीकर उसी पार्लियामेंट से जो एमपी होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट एमपी होते हैं, उनको लोग सेलेक्ट करते हैं और वो इनको स्पीकर बनाते हैं। तो अभी हुई द लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर इज ओम बिरला। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, अभी हमने देखा कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी बिल बनता है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो एक एक्ट बन जाता है। अभी द रोल ऑफ पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट का रोल क्या है, पार्लियामेंट एक्ट कैसे करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जो हम डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है जिसमें हम फेथ करते हैं वो हम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट के वजह से ही डेमोक्रेसी मेंटेन है।
These are participation by the people in the decision making process and the government by the consent. Consent का मतलब होता है सहमति. The election to the parliament are held in the similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. तो हमने जैसे क्लास 7 में पढ़ा था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी एमएलए का जैसे इलेक्शन होता है, सेम ऐसे ही इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए. और कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट 5 years के लिए. ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट. और एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमपी, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं. और वही होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल, और जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं. ये सब क्वेश्चन है. विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मोस्ट सीट्स. अभी आपको क्या करना है कि यू जस्ट इन द योर बुक स्टडी दिस चार्ट, and after study this chart you can give the answer of all the question. Okay, look at this chart. The above table gives you the result of the 15th Lok Sabha election held in 2009. जो 15 लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2009 में हुआ था. 16 कब हुआ था? 2014 में. और 17 जो हुआ था 2019 में. यानी अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा जो लोकसभा का, वो कौन सा होगा? 18. In 15th Lok Sabha, INC Indian National Congress got a large number of seats but is still not enough to emerge as the majority party in the Lok Sabha. It thus had to form the coalition United Progressive Alliance with the other political party who were in its alliance. अभी क्या हुआ कि ये जो इलेक्शन हुआ 2015 में, सॉरी 2019 में, जो 15th लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें इंडियन कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिला. तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ मिलाया और उसका नाम रखा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए. और इस तरह से गवर्नमेंट जब बनाते हैं अपने एलिस के साथ तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं. वन इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इसमें अभी जो एक कैंडिडेट जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से सिलेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसी को एमपी बोलते हैं. जब सेंट्रल के लिए इलेक्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो एमपी बोलते हैं. जब वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट होते हैं तो उनको एमएलए बोलते हैं. दीज एमपीज टुगेदर मेक ऑफ द पार्लियामेंट. और ये जब एमपी सारे मिलते हैं पार्लियामेंट, तो यही पार्लियामेंट, क्योंकि कुछ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा होते हैं, कुछ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा होते हैं. और यही लोकसभा राज्यसभा जब मिलाते हैं तो ये पार्लियामेंट बनाते हैं. द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट का जो काम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. अभी जो पार्लियामेंट बना यानी जो भी एमपी सेलेक्ट हुए वो नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे यानी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे सेंट्रल लेवल पे. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. अभी मैंने आपको बताया था कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. A political party to form the government they must have a majority of the elected MP. में जब मेजोरिटी होना चाहिए. मेजोरिटी क्या होता है कि जितनी भी सीट है, फॉर एग्जांपल 543 सीट है, 543 का हाफ सीट से ज़्यादा होना चाहिए. जिस पार्टी के पास हाफ सीट से ज़्यादा होगा यानी 543 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 सीट जिसके पास होगा वो मेजोरिटी में रहेगा और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर इन लोकसभा. अभी ये 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड था अभी हट चुका है, अभी नया अमेंडमेंट आया हुआ है. हैव ए मेजोरिटी ए पार्टी शुड हैव लिस्ट हाफ द नंबर यानी 272 मेंबर्स आर मोर देन द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोलिजन फॉर्म. अभी जो अपोजिशन पार्टी कौन है? अगर जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने अपना यूपीए गवर्नमेंट बना लिया तो इसके बाद जितने भी एमपी बचे हैं, जितनी भी पार्टी बची है वो उनके अपोज में बैठेगी और वो अपोजिशन पार्टी फॉर्म करेगी. द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी. और जो उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी यानी जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे उसको हम अपोजिशन पार्टी बोलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. जो लोकसभा का काम है वो एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, जहाँ से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन काम शुरू होता है, रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है, जो हेड होता है उसका इलेक्शन लोकसभा के द्वारा होता है. ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. जो ग्रुप ऑफ पर्सन जो मतलब लोग हैं इकट्ठे होके, ग्रुप ऑफ पर्सन कौन है?
एमपी हैं और जो लॉ रेगुलेशन बनाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। अब लोक अगर पूछा जाए हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स to work with her to implement decision. A prime minister, this is the duty of prime minister to select the other ministers of other different department to implement the decision, to work and to function the government. This minister then takes charge of different areas of government functioning like health, education, and this minister is related to health, education, finance, etc. Now this is a north. This is the picture of north block and south block. It is the part of it. These are situated in New Delhi. These two buildings of the central secretariat, the south block and north block. ये जो south block and north block were built during 1930. Okay, 1930 में बना था. And south block which housed the prime minister of the प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसको पीएमओ बोलते हैं, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड डिफेंस मिनिस्ट्रालय मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सिचुएटेड इन साउथ ब्लॉक, एंड द नॉर्थ ब्लॉक is the photo on the right. This has the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs. The other Ministry of Union Government are located in various buildings in New Delhi. The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the state of India in Parliament. अब ये जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो भी एमपी होते हैं वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली हर स्टेट को, यानी हर एक स्टेट के जो राज्यसभा के जो एमपी हैं वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपने स्टेट का पार्लियामेंट में रेज करते हैं. द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. अगर कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है तो उसको राज्यसभा से भी इनिशिएट किया जा सकता है, यानी कोई भी रूल रेगुलेशन अगर नया बनाना है तो या राज्यसभा से इनिशिएट हो सकता है या तो लोकसभा से इनिशिएट हो सकता है. जब दोनों जगह से क्लियर हो जाएगा उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद ही वो जो है एक्ट बन जाता है. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो एमपी का इलेक्शन होता है वो जो हमारे एमएलए होते हैं वही इलेक्ट करते हैं एमपी. कौन से एमपी को? जो राज्यसभा के एमपी होते हैं. द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है? वो एमएलए होते हैं. There are 233 elected members and plus 12 members nominated by the president. 233 elected by the members and 12 members nominated by the president, and total is 245, and 12 members which are nominated by the president belongs to different areas. What is the second work of parliament? To control, guide and inform the government. The parliament while in the session begins with the abox hour. abox hour जो होता है पहला फर्स्ट आवर स्टार्ट होता है जो पार्लियामेंट में काम चलता है, जिसको हम प्रश्न हिंदी में प्रश्न काल भी बोलते हैं. The abox hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is very important way through which the parliament controls the executive by asking questions. The government is altered to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people. And through their representative in the parliament, the MPs ask question of the government is a crucial task for every MPs. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of democracy. They highlight drawbacks in various policies, programs of the government and mobilize popular support for their own policy. अब ये जो प्रश्न काल होता है बॉक्स आवर होता है, इसमें जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं, एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारी कंट्री के पॉलिसी से रिलेटेड होता है. उसमें गवर्नमेंट भी अपने तरफ से बहुत सारी बातें बताती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उसके अगेंस्ट में कोई क्वेश्चन है चाहे कोई सजेशन है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो इस समय पूछती है.
द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द पार्लियामेंट। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकसभा में सभी सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे लोकसभा का सेशन चल रहा है तो प्रश्नकाल का टाइम है, अबॉक्स आवर्स है, उसमें जंक फूड इन स्कूल्स, ठीक है। तो उसमें अभी कोई जो एमपी है वो क्वेश्चन पूछता है कि विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, फिर whether the National Commission for Protection of Child Rights has asked all state government to ban junk food in school and also for setting up the nutrition standards। इसके बाद बी में भी कुछ पूछता है, ऐसे सी डी जितने भी उसके पास क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट के सामने पुट करता है। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो अपना उसके उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसके बारे में वो आंसर दे रहे हैं कि A and B, no sir, a letter was issued. A letter was issued to the state of National Commission for Protection of the Child Rights to consider providing guideline to schools to create the school nutrition पॉलिसी। यानी उन्होंने अपनी तरफ से रिप्लाई दिया कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को लेटर बनाया हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो ऐसे जो अपोजिशन होता है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है और गवर्नमेंट जो उसका आंसर देता है और उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है और जिसका लाइव टेलीकास्ट जो है सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब जो भारत के नागरिक हैं वो आराम से देखते हैं और उनको पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट्स केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। और जो एमपी क्वेश्चन दे पूछते हैं उस क्वेश्चन के आधार पे गवर्नमेंट हमेशा उससे सेंसिटिव होती है और उस क्वेश्चन के आधार पे ही आगे बहुत सारी कार्रवाई करती है और ऐसा काम भी करती है ताकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट ना हो। The MPs are representative of the people, have central role in the controlling, guiding। अब जो who control the government, तो MPs controlling, guiding and informing the parliament। This is the key aspect of the functioning of Indian democracy। यही है इंडियन डेमोक्रेसी का की एस्पेक्ट, यानी यही मूल मंत्र है जो एमपी कंट्रोल करते हैं। और एमपी को कंट्रोल कौन करता है? पीपल करते हैं। यानी एमपी को इलेक्ट कौन करता है? जो हमारे देश के लोग हैं वो करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा देश जो है डेमोक्रेसी है, बिकॉज जो एमपी हैं वो रूल रेगुलेशन बनाते हैं और एमपी को कौन बनाता है? एमपी को जनता बनाती है। यानी हमारे देश के नागरिक बनाते हैं, हमारे पीपल बनाते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया बनाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जो लॉ मेकिंग है, सी है लॉ मेकिंग, यही लॉ मेकिंग यानी नियम कानून बनाना, नए नए पॉलिसी बनाना, रूल रेगुलेशन बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम किसका है? पार्लियामेंट का। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में कौन है? द पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर people from different backgrounds। For example, there are more rural members as also members from the many regional parties। अभी जो पार्लियामेंट में है बहुत जगह से डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। कोई रूरल एरिया से है, कोई अर्बन एरिया से, कोई किसी मतलब कोई किसी रिलीजन से है, कोई तो इसमें डिफरेंट लोग हैं जो हमारे जनता का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जनता के प्रतिनिधि हैं। सम सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर एससीज। कुछ सीटें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। यानी इसलिए इनको दिया हुआ है रिजर्वेशन, सो दैट कि हमारे जो दलित भाई बहन है उनका भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में आए और उनके जो इशूज हैं वो पार्लियामेंट में रेज करें। सिमिलरली देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द वुमेन। ऐसे ही कहने का मतलब है ऐसे ही वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। बट दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। बट ये इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, यानी अभी भी जो पार्लियामेंट में है उसमें लेडीज को यानी जो वुमेन है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है। 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above the 9%। पहले 60 years पहले सिर्फ 4% थे MPs, आज 9% है। बट दिस इज ए स्मॉल शेयर, बट अभी भी ये बहुत कम है क्योंकि इनफैक्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। क्योंकि अभी हमारे कंट्री में अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन यानी आधी जनसंख्या सिर्फ वुमेन है। तो एटलीस्ट 50%, इनके कहने का मतलब 50% वुमेन होना चाहिए जो एमपी हैं, सो दैट कि
वो अपने वोमेन का पूरा से पूरा रिप्रेजेंट करें, यानी उनका प्रतिनिधि करें, और वोमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट में रेज करें। अभी हम इसमें ग्लोसरी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अप्रूवल? टू गिव वन कंसेंट टू एंड बी फेवरेबल टूवर्ड्स समथिंग। अगर आप कोई बात बोल रहा है, उसके कंसेंट दे रहे हैं, यानी उसमें अपनी सहमत जता रहे हैं, हाँ भर रहे हैं, तो उसको ही हम अप्रूवल बोलते हैं। ऐसे ही जब गवर्नमेंट का पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसमें लोग कोई भी पॉलिसी होता है तो उसमें अपना कंसेंट देते हैं, तो उसको हम अप्रूवल बोलते हैं। कोलिजन, कोलिजन क्या है? कोलिजन मैंने बताया था, जिसको हिंदी में गठबंधन बोलते हैं। तो टेम्प्रोरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज इन दिस। टेम्प्रोरी अलायंस, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हो गया और इलेक्शन में किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, तो उसमें कई पार्टियां मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और उसी को हम कोलिजन करते हैं। वो टेम्परेरी होता है, जैसे ही उनका गवर्नमेंट का 5 ईयर्स का टाइम खत्म होता है फिर वो अलग हो जाते हैं। अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन इन विच, अनरिजॉल्व मतलब जो ऐसी समस्या जो अभी सॉल्व नहीं हुई है। इजी सोल्यूशन मतलब इस सिचुएशन इन विच देयर आर नो इजी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम का कोई इजी सोल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो उसको अनरिजॉल्व बोलते हैं। अब एक्सरसाइजेज है, ये एक्सरसाइजेज आपको पूरा करना है। इस एक्सरसाइजेज में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है,